Great. So we were talking about substitutions yesterday. Good afternoon, everyone. We will continue with the substitutions and then we will prove some properties for CFL. So substitution was that whenever you had a symbol A and you defined a substitution as A, so wherever required, wherever A occurred, you would substitute SA with that. Now we will do one more example. One example we had done by substituting A with ANBN and one with AA or BB. Now there is another example. Here L is binary palindrome. Binary palindrome matlab palindromes over 0 or 1. So CFG for the binary palindromes is this. Okay. It is 0 as 0 or 1 as 1 on nulls. And you are defining substitution wherever 0 occurs as ANBN and wherever 1 occurs as XX and YY. So the CFG for substitution is this and CFG for substitution of 1 is XX or YY. So now you have to create CFG for the new substitution language SL. Is the question clear? The question is that the language is given, which is your binary palindrome. You have been given substitution of 0, which is your ANBN, and you have been given CFG for substitution of 0 and a CFG for substitution of 1. So now you have to create a CFG for the language SL, that is substitution over all words in L. Please do that. Let me admit people. Please solve it. So Sai Sachin is not there to respond, so I expect someone else to take over and respond. I hope the question is clear. Substitution करने हैं. Language L दी हुई है, which is palindromes over 0 or 1, and then wherever 0 occurs, you have to substitute ANBN, and wherever 1 occurs, you have to substitute XX or YY. So obviously we know the words will be of some form like this, but now I want you to develop a CFG for SL. Anyone done? Anyone who can help me with the answer? Abhinav, Chirag, Bhumi, Pooja, Prakyat. Can anyone help? Prakriti, Pratika, Tanya, Vibhu. Anyone who will respond? बताओ भाई. I'll stop presenting. Please respond. Anyone start sharing your screen. Who's presenting? Vibhu, can I start with you? Vibhu, nobody has answered. No. Just present your answer.
Are you presenting with it? Tanya, can you present? Tanya? फायदा क्या है क्लास करने का? आप लोग फिर खुद ही पढ़ लो ये टॉपिक। 4th पेज पे लिखा है, मेरे हिसाब से डन हो गया है। 1 मिनट और दे रही हूँ, 12:44 तक जवाब दो, नहीं तो मैं क्लास खत्म कर, बस बहुत हो गया, रोज रोज नहीं होता है। अटेंडेंस मार्क हो गई है, यू कैन लीव एंड आई एम डन विद दिस टॉपिक नाउ। मैम करना क्या था मैम इसमें बस रिप्लेस ही तो करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब। दिखाओ ना, फिर करके दिखाओ, प्रेजेंट करो। Are you presenting, Prakriti? I think you joined late, Chirag, so you might have to catch up. मुझे ये नहीं पता करना क्या है, मैं अभी ज्वाइन हुआ था मैम। Prakriti, are you answering? Are you showing the screen? Ma'am, I'm writing. I'm giving 1 more minute to everyone. If somebody does not respond, then I will end this class and I'll assume that this topic is done. मैं 1 मिनट में करता हूँ। मैम एक बार सब्स्टिट्यूशन वाला दिखा देना जरा, इसमें s को किससे और 0 को और 1 को किससे किया। Wait. You have a language of binary palindromes, and the CFG for this language is this. Substitution over 0 is ANBN, and CFG for it is this. And substitution for 1 is XXYY, and the substitution, the CFG for this is this. So just simply create CFG for SL. तो मैम इसमें तो ऊपर जो 0 की जगह पे S0 लिख देंगे और 1 की जगह पे S1 लिख देंगे। लिख के दिखाओ तो सही, प्रेजेंट तो करो। अच्छा 1 मिनट लिख के दिखाता हूँ। प्रकृति भी यही बोल रही थी, पर किया किसने नहीं। मैम ऐसे क्या, ऐसे रिप्लेस करना है क्या? थोड़ा सा जूम इन करोगे, रुको मैं स्टॉप करूं प्रेजेंटिंग। मैम मैं फोटो क्लिक करके प्रेजेंट करती हूँ। ओके। कर रही है प्रगति कि मैं करूँ? मैं चैट में लिख देता हूँ। Who is written something in chat? Abhinav, you have the same answer. What did you have written? मैम प्रकृति का पता नहीं, शो नहीं हो रहा मेरे पे। नहीं, विभू ने लिखना है चैट में। हाँ यही है, रिप्लेस कर देना बस। Okay. Prakriti, will you be able to present? Are you presenting? Okay, great. Thank you. Okay, S not. A and B and S not. फाइन, तो ऊपर वाले स्टेप की जरूरत नहीं है जहाँ पे ANBL लिखा हुआ है आपने प्रकृति, नीचे वाला is enough. But after this, so suppose such kind of a question comes in the exam to display the substitution, then just let me present my screen.
So after this question if this question comes in the exam, you are supposed to give the CFG. You have to tell कि S goes to S naught S naught because this is over zeros. It was initially 0 and this was 0. This was 1 and this was 1. You renamed it as S0 A and B N के लिए जो CFG थी A S naught B और AB एंड S1 के लिए XXYY. तो आपने 0 को सिंपली सब्स्टिट्यूशन ऑफ उससे रिप्लेस कर दिया और 1 को सब्स्टिट्यूशन ऑफ इससे. बट द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट ओवर हियर. अभी मैंने CFG बनाने को बोला है, उसके बाद आपको एंड में जब आप क्वेश्चन फिनिश करने लगोगे तो SL के सारे वर्ड्स भी देने हैं. ऑब्वियसली इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो 3-4 वर्ड्स देके छोड़ देना. तो आई थिंक प्रकृति आपके स्टेप्स जो है ना इंटरचेंज हो जाएंगे. आप कुछ ऐसा लिखोगे, दिस वुड बी समथिंग लाइक AB XX and A. No, I'm right. I'm wrong. हम AB का Sorry, I made a mistake. So it could be AB और सॉरी AB BA होगा ना. मैम AB होगा ना. AN BN है. हाँ मैम, पर फिर अगेन है ना S नॉट. AN नहीं आएगा क्या? पहला वर्ड क्या बनेगा लैंग्वेज का? AB. क्यों S नॉट का? S नॉट सिंपल है तो नल नहीं आ सकता. S नॉट AB हो जाएगा क्योंकि ANBN है ना मैम, तो खाली AB आ सकता है. तो S नॉट की जगह AB, देन नल, देन अगेन S नॉट आ रहा है तो AB. हाँ AB आ रहा है. तो दिस वाज व्हाट. सबसे पहले ये 0 था और ये 1 था और बीच में क्या आ गया? सॉरी, दिस वाज 0 ओनली. यस मैम. क्या S जिसको मैं नल ले सकती हूँ, है ना? यस तो मैम. इसको रिप्लेस कर दिया AB से और इसको भी रिप्लेस कर दिया AB से. So this is the first word. So Yes, you will have to form. अच्छा, अगला वर्ड एक और होगा. 1 वाले में क्या होगा? XXYY. अगर मान लो 1. So this is कुछ भी बन सकता है मैम वो तो. 1 XX. हाँ, ये Y कुछ भी ले सकते. XX Y YY XX and YY. So this is one word, this is another word, and then so on and so forth. Other words will be formed. बट आपको ग्रामर के कुछ वर्ड्स फॉर्म करके दिखाने होंगे. अगर सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब आप ये देखो, जब आप आंसर करते हो ना तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं. अगर सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है CFG दो तो सिर्फ CFG दे दो. बट अगर वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं उसको, तो फिर आप ये वाली आंसर भी लिखो. आई डोंट नो. हाँ जी. नल भी दिखाना पड़ेगा क्या? क्योंकि एसेंस नल भी है तो एक नल भी तो बन सकता है शायद. हाँ, नल भी बन सकता है, एम्प्टी वर्ड भी बन सकता है. दिखाओगे. ओके मैम. तो वो नल था. आई थिंक AB भी लिखा था हमने. यस मैम. था फिर वो X और Y के XXY के कॉम्बिनेशन. यस मैम. तो ये आप पाओगे एग्जाम के उसमें ना. अब मुझे नहीं पता इस टाइम एग्जाम इस बार कैसा होने वाला है, बट नॉर्मल एग्जाम में 2, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मार्क्स के हिसाब से जवाब देना. बस इतना ध्यान रखना कि अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे इतने में छोड़ मत देना. कोई 2-3 वर्ड्स फॉर्म करके, कैसे फॉर्म हुए हैं अलग अलग टाइप के ना, 2-3 वर्ड्स फॉर्म करके दिखा देना. नाउ आई थिंक ये थ्योरम हमने कल भी डिस्कस करी थी. सिंपली आपको ग्रामर दिया है, आपने हर वर्ड के लिए आपने देख लिया यहाँ पे, जैसे 0 के लिए आपने फॉर्म किया था तो वो यही बोल रहा है. 0 के लिए टर्मिनल नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करो, 0 के लिए टर्मिनल इंट्रोड्यूस करो, 0 के लिए प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करो और 0 के लिए स्टार्ट सिंबल. यही किया है हमने ऊपर, सेम चीज करी है. देन यू आर फॉर्मिंग सब्स्टिट्यूशन. तो आपने सबसे पहले कौन सा लेटर लिया? इनपुट सिंबल लिया 0 और 0 के लिए आपने स्टार्ट सिंबल, टर्मिनल्स
एंड नॉन टर्मिनल्स एंड प्रोडक्शंस इंट्रोड्यूस कर दी। सेम चीज फिर आपने 1 के लिए करी। 1 के लिए किया स्टार्ट सिंबल, प्रोडक्शंस और टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स एज रिक्वायर्ड। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर SL डिफाइन करनी है तो हर पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज बनाओ और उसमें ये सारी चीजें ग्रामर की इंट्रोड्यूस कर दो। उसके बाद जब पूरी लैंग्वेज L के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की ग्रामर बनानी है तो आपने क्या करना है, V प्राइम बनाना है विच इज L prime, and L prime is equal to substitution over L. Now this V prime will contain, V is the set of non-terminals. So this V prime will contain union of all this. VA, VB, मतलब non-terminals that were used for developing substitution of A, non-terminals used for developing substitution of B. जो भी जितने भी आएंगे वो सारे आपने V prime में डाल देने हैं। तो यूनियन T प्राइम इज टर्मिनल्स का यूनियन जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। इस केस में T प्राइम क्या होगा आपका, एक तो ये AB होगा और XX और YY होगा। उसके बाद P प्राइम विल कंटेन ऑल द प्रोडक्शंस, तो इन दिस केस द प्रोडक्शंस विल बी दिस, दिस एंड दिस, एवरीथिंग, ये इंक्लूडिंग दिस, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सो वी आर सेइंग ऑल प्रोडक्शंस ऑफ all the symbols that are to be substituted and all the productions of the original language but with terminals replaced by substitution, यही किया है, with terminals replaced by substitution। तो productions include करनी है but जहाँ पे भी terminal है वो उन letters के substitution से replace कर देंगे। तो अब जब आपका पार्स ट्री बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, फाइन आप डेरिवेशन वैसे ही करोगे बट टर्मिनल पे जो सब्स्टिट्यूशन आई थी, सब्स्टिट्यूशन की ग्रामर आई थी वो लग जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द न्यू सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज। यू हैव ऑलरेडी डन एन एग्जांपल ऑफ इट। सो अब उसके बाद अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हो, अ स्ट्रिंग W इज इन LG प्राइम, मतलब न्यूली क्रिएटेड सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में तभी है जब वो स्ट्रिंग आप सब्स्टिट्यूशन ओवर L लगाते हो, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर W सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज को बिलोंग करता है तो कुछ ऐसा होगा, कुछ x इज इक्वल टू A1 A2 अप टू N, मतलब L के कुछ सिंबल्स को यूज करके एक वर्ड बनेगा एंड इन सिंबल्स को आप अगर अगर आप A1 A2 AN बोल रहे हो तो जब आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ L बनाओगे, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ L बनाओगे तो आपका कंकैटिनेशन होगा S A1 S A2 so on till S AN। सो वर्ड की सब्स्टिट्यूशन ऐसे बन रही है कि जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन आपस में कंकैटिनेट कर दो। अगर मैं इसको XI का नाम दे दूं, दिस इज X1 and this is X2 and this is Xn, so we are simply saying that these two are equal, मतलब X1 X2 Xn is a word in L prime। तो जब आपने ये करा तो आपने बस सिंपली ये प्रूव करना है कि once I have derived the substitution, I am equating them with this X1 X2 Xn, I am calling them with new names, and once I am done I will create a parse tree। After creating a parse tree I can always derive X1 by substituting the parse tree of the substitution grammar। बस ये कह रहा है प्रूफ। समझ आया है? दोबारा समझाऊं? Do you want me to repeat it? Yes, ma'am. You have understood how you have created the substitution grammar, or should I explain that also? No, ma'am, वो आ गया, ये नहीं आया। Okay, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग आपको प्रूव करना है कि जो स्ट्रिंग W है वो LG प्राइम का पार्ट है। LG प्राइम क्या हुआ था, आपने जब सब्स्टिट्यूशन करके बनाया था, ये तभी ट्रू हो सकता है जब W जो है SL का पार्ट है, मतलब इफ एंड ओनली इफ की बात है। तो आप पहले इफ में प्रूव करो कि W इज अ पार्ट ऑफ LG प्राइम एंड देन आप इफ एंड ओनली इफ का सेकेंड पार्ट प्रूव करो दैट W इज पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है
कि अज्यूम कर लो कि W जो है सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का पार्ट है। अगर वो सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का पार्ट है तो आपने ओरिजिनली लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स बनाए होंगे ऑफ A1 A2 AN। तो अगर W सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का पार्ट है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि W इज समथिंग लाइक दिस। अगर लैंग्वेज में A1 A2 AN है तो L प्राइम को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि सिंबल एक्सेस होंगे उसमें एंड दे आर लाइक दिस। इतना कह सकती हूँ, जिसने भी अभी डाउट पूछा है, आई थिंक चिराग बोल रहा था, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। This is my original language, this is my substitution language. So we are simply saying that if you have L is equal to A1 A2 AN and you want to create a new word which is formed by substitution, so instead of calling A1 or S of A1, you can call it X1, call it X2, call it X3. तो उसने वर्ड को X1 X2 XN में स्प्लिट कर दिया। तो the part of G prime will become with production something like this. That is, you are simply saying कि जब भी G prime है उसमें प्रोडक्शंस आई, जब भी आपकी नई लैंग्वेज आई है तो उसमें जो भी प्रोडक्शंस हैं, जो L की प्रोडक्शंस थी P1 P2 P3, अब वो वाली प्रोडक्शंस में सिंपली सेम प्रोडक्शंस हैं बट आपके जो नॉन टर्मिनल हैं वो रिप्लेस हो गए हैं नए टर्मिनल से, नॉन टर्मिनल से जो नई लैंग्वेज का पार्ट है, विच इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ A1 का टर्मिनल एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ A2 का, A3 का, AN का। तो अब ये बोल रहे हैं कि लेट मी जस्ट रफ दिस ऑल। ये सिर्फ सोचने वाली बात है, मतलब दो पार्ट्स में इसने प्रूव किया है। इसने सिर्फ ये बोला है कि a string W is in the newly created grammar if and only if you can create it using the substitution, ये बोल रहा है। अब हम मान के चल रहे हैं that you could create it using the substitution। तो अगर आप हर A पे substitution लगाते तो कोई नया वर्ड बनता, उस नए वर्ड को मैं XI से डिनोट कर रही हूँ। अब अगर अब हम यहाँ पे शुरू हो रहे हैं G प्राइम नई ग्रामर के पार्ट के, ये SL वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि वर्ड कैसा दिखता होगा। अब हमारे G प्राइम पे, G प्राइम में क्या है, ऑल द प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूटेड विद सब्स्टिट्यूशंस ऑफ A1 A2 A3 AN। तो जब आप ऐसा लिखोगे तो यू वुड हैव रिटन लाइक दिस, एंड इसको हमने ऑलरेडी कह दिया है कि जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ A1 A2 AN है दे आर एक्चुअली X1 X2 XN which we have already written. So by this we can prove this equality. You have both the ways you have proven ki SAI is given by applying SA1 SA2 SAN, and let me call them X1 X2 XN. Now in the G prime part you are simply saying that productions are always coming from SA, substitutions of all the A's, all the input symbols. So you, and because you are writing them as this SA1 SA2 and up to SAN, and we have already called them to be X1s and X2s and XNs above, so this equivalence holds, and that's why this is true. And another way of explaining this is that you create the parse tree of the original language L, and at the end when you have terminals, replace them by the substitutions. When you replace by them by the substitution, so these subparts of the final word will be some XIs, and इनका सबका concatenation लेके word बनेगा, और वो word वही होगा जो आपने इंडिविजुअली सब पे कंकैटिनेट करके लगाया हो। अब आप कंकैटिनेट करके हर एक पे लगाओ या एक नई लैंग्वेज बनाओ, यू आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ सेम वर्ड। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। नाउ इज दिस समवॉट क्लियर? ओके मैम। बोल रहे मतलब इतना क्लियर नहीं, एक बार पढ़ के देखना, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगी।
then whenever we have next doubt sessions, एक बार पढ़ के देखना. ठीक है. To repeat it, if you apply substitutions on individually of a word in L, let's say if you apply W1 is belonging to L, let me call this W1 as AB. तो इसकी सब्स्टिट्यूशन आप जब लगाते हो यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन रूल, तो आपने एस ए एस बी कर दी थी. एंड अगर मैं एस ए को x1 कह दूं और एस बी को x2 कह दूं, तो अब ये बोल रहा है कि जब मैंने ऐसा किया था, अगर मैं पूरे वर्ड पे सब्स्टिट्यूशन लगाती तो भी यही आता. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर मैं पूरे वर्ड पे सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगी, मतलब मैं नई ग्रामर यूज करने वाली हूँ. और जब भी मैं नई ग्रामर यूज करती हूँ तो पूरा का पूरा पास्ट ट्री, डेरिवेशन ट्री एग्जैक्टली पुरानी ग्रामर का होता है, एल का ही होता है. लेकिन एंड में जब भी टर्मिनल ए और बी आता है तो एक नया सब ट्री मैं चिपका देती हूँ उस टर्मिनल की जगह, जो फाइनली मुझे x1 x2 डिराइव करके देता है. तो मैं ऐसे लगाऊं या इंडिविजुअली लगा के कंकैटिनेट करूं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म द सेम वर्ड. दैट इज व्हाट इट इज. Now the other part is that the context free languages are closed under union, concatenation, closure and clean closure, and one more operation which is homomorphism. Union क्या होता है? What is union? If I say सबका सब मतलब जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है सब का नॉन रिपीटेशन हटाना बस सब में से. नहीं, common elements या all the elements? All elements. All elements. Right. So if you have languages L1 and if you have languages L2, the union will comprise of all the words L1 in L1 as well as in L2. Yes, because it is a set, so you will not have a repetition, but all the words of L1 and L2 will be there. So union, regular languages were closed under union or not? Yes, ma'am. So they are closed under, the CFLs are also closed under union, and this can be proved using substitution जो आपने अभी लगाया है. अगर L1 की substitution SL है and L2 की substitution L2 है, S2 है या S2 है, L1 की substitution S1 है और L2 की substitution L2 है, तो आप उनका यूनियन ले लोगे, वो क्लोज्ड रहेगा. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्या बात बोल रही मैं इतनी देर में? We are saying that union of two CFLs, context-free languages, is a context-free language. Now I am saying कि if I create a substitution of L1 and if I create a substitution of L2, it is also context free. Having said that, we can say that all CFLs are context free. How is this true? सबसे पहले, do you agree that if L1 is context free and L2 is context free, this is also context free? Do you agree about this or not? क्यों होना चाहिए? Thank you. Very good. Thank you so much. So he is saying that L1 है, L1 के लिए एक PDA बना सकते हो, पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हो, इसलिए वो कंटेक्स्ट फ्री है. हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि कंटेक्स्ट फ्री. आप सब्स्टिट्यूट करना है तो चाहे A लिखो या 0 लिखो या X लिखो या A की जगह D E F लिखो. अगर A से एक्सेप्ट हो रहा था तो 0 से भी होगा, X से भी होगा, और A की जगह DEF सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी तो भी होगा. मतलब, और इसकी जगह बेसिकली ये सब लैंग्वेजेस तो हैं. अगर सिंगल इनपुट है तो भी लैंग्वेज है, और
स्ट्रिंग ऑफ इनपुट्स है तो भी लैंग्वेज है। तो सिमिलरली अगर मैं ए की जगह AN BN लिख दूंगी तो भी तो होगा। तो बेसिकली वो वही फॉर्म फाइनली लेना पड़ रहा है, बस उसकी यूनिट्स बदल दी हैं। पहले ए लिख रहे थे, अब AN BN लिख रहे हो उसकी जगह। So there will always be, because you could create a push down automata for L1 and you could create a push down automata of L2. You can always create a push down automata of SL1 and SL2. So you are saying कि अगर ये है तो इनकी substitutions भी हैं। अगर इनकी substitution है तो अगर substitution को union से replace कर दूं, instead of applying any other operation, I will say just apply a union operation. So अगर L1 है और सब्स्टिट्यूशन फंक्शन मेरा कोई यूनियन फंक्शन बन जाता है, दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ L1 इज इक्वल टू समथिंग यूनियन समथिंग, गिवन L1 इज CFL। सो मान लो दिस इज L2 एंड दिस इज L3। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो वो भी तो CFL बनेगा, क्योंकि सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही तो किया है। तो दैट्स व्हाई the languages CFLs are closed under union। आप पूछ लो सवाल अगर पूछना है तो। नहीं, I hope this is obvious। Yes please, पूछो। So I'm assuming that you are clear। We are simply saying कि अगर एक language CFL है तो उसकी substitution भी CFL होती है। अगर substitution CFL होती है तो उनको किसी तरह combine करेंगे तो they will still be accepted by the push down automata। इसलिए यूनियन के अंडर क्लोज्ड हैं CFLs। और कंकैटिनेशन के लिए भी सेम लॉजिक है। आपने L1 L2 CFL लिए और उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कर दिया बाय कंकैटिनेशन। सो बेसिकली L12 किया, which is you are substituting this in the first language or probably the second language, then also it will be a CFL। क्लोजर में आपने क्लीन क्लोजर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेम लैंग्वेज को अपने ही क्लीन क्लोजर से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो भी CFL बन जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि क्लीन क्लोजर अपने आप में रेगुलर है, जो चीज रेगुलर थी वो CFL भी थी, इसलिए ये भी क्लोज्ड है। इतना क्लियर है? यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि एग्जाम में मैं ये प्रूफ करा दूंगी, पूछ लूंगी, आपसे टेस्ट ले लूंगी और मैं ये प्रूफ करा लूंगी। प्रूफ करेंगे कैसे? स्टेप्स? आपने कुछ नहीं बताना, आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन क्या होती है वो डिफाइन करना है। वन थिंग, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऊपर डिफाइन करके आए थे। उसके बाद आपने कोई भी दो लैंग्वेज एज्यूम करनी है, L1 इज CFL एंड L2 इज CFL। नाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म दैट एक न्यू लैंग्वेज ले रहे हो जो कि यूनियन है ऑफ L1 and L2, but it is defined by a substitution। L1 union L2 is defined by a substitution of L1 and L2। तो आपने बेसिकली यूनियन जो लैंग्वेज है वो सब्स्टिट्यूट करी है, यूनियन की लैंग्वेज सब्स्टिट्यूट करी है तो वो CFL है। और इंटरसेक्शन नहीं, कंकैटिनेशन में भी सेम चीज बोलोगे दैट L1 एंड L2 अगर CFL है तो L1 डॉट L2 एक लैंग्वेज है और SL वो किसकी लैंग्वेज है, वो है बेसिकली आप बोल रहे हो क्या कि SL इज इक्वल टू L1 डॉट L2। यहाँ पे SL इक्वल्स टू L1 यूनियन L2। अब L1 या L2 में से किसी में SL सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो L1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ कि ये लो, ऐसा कुछ कर दो, ऐसा डिफाइन कर सकते हो SL1 इज इक्वल टू L1 यूनियन L2। बिकॉज L1 was CFL then SL1 will also be CFL। अगर मैं ये बोल दूं SL2 इज इक्वल टू कंकैटिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, कैन आई डू दिस? क्वेश्चन है, कोई भी लैंग्वेज ले सकती हूँ ना मैंने तुमने XX ले लिया था सब्स्टिट्यूट करने के लिए, मैं XX नहीं ले रही, मैं L1 डॉट L2 ले रही हूँ। मतलब ऑल वर्ड्स whatever word of L1 is, it will always be concatenated by word of L2।
तुमने AN/BN लिया था, मैं L1.L2 ले रही हूँ, तो कर सकती हूँ ना सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ तो मैं उसका पास ट्री भी बना सकती हूँ। इस तरह कौन करो। अच्छा चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सिर्फ यूनियन बताऊंगी या कंकैटिनेशन बता देती हूँ, बाकी फिर आप अपने आप कर लेना। सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, आपने एग्जांपल से प्रूव नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रही हूँ। L1 is A, is this CFL? ये भले बताओ, is this CFL? is this it is CFL because ये रेगुलर है, ये हम पढ़ के आए हैं, इंडिविजुअल टर्मिनल्स आर या जो भी सिंबल्स हैं वो रेगुलर होते हैं। अगर रेगुलर होते हैं तो FA एक्सेप्ट कर सकता है। अब सेम चीज अगर पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर पाएगा, फॉर एग्जांपल रीड इनपुट A इफ A एक्सेप्ट, पुश डाउन ऑटोमेटा ऐसे ही बनेगा ना, तो इसको PDA ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये CFL भी है। अब अगला क्वेश्चन, इज दिस CFL? Okay, now I am saying that there is a language. Okay, now let's say इसकी प्रोडक्शन बताओ दो मुझे। ये हो गया S1 goes to A, खत्म हो गई लैंग्वेज डिफाइन, एंड दिस इज S2 goes to B. Now let me define a substitution language of L1 which is equal to L1 dot L2। जब भी L1 का कोई वर्ड आएगा तो उसमें L1 dot L2 करेंगे, तो इसकी प्रोडक्शन क्या होगी? S is equal to S1 S2, ये होगी। डू यू अग्री? यस मैम। सब्स्टिट्यूशन वाली लैंग्वेज की प्रोडक्शन ये होगी। अब S1 goes to what? A and S2 goes to what? B. So whenever I am starting, I am getting S1 S2, so this is S1 and S2 ट्री बन गया, और उसके अंदर A B सब्स्टिट्यूट कर दिया, वर्ड क्या बन गया? AB. So the substitution for L1 was AB. Can you create a push down automata for this? You can always create a push down automata. Input टेब बनाओगे, A आएगा, B आएगा, ब्लैंक आएगा, रीड करोगे, जब रीड करा तो A आएगा, तो अगली बार अगर B रीड किया है तो एक्सेप्ट मार दोगे, अगर कुछ और आया है तो रिजेक्ट मार दोगे। बन गया पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर पुश डाउन ऑटोमेटा बना पा रहे हो तो क्या वो लैंग्वेज CFL है? Yes, ma'am. तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, किसी भी लैंग्वेज को ऐसे कंकैटिनेट कर सकते हो। बेसिकली जस्ट यूज अ कंकैटिनेशन एज अ सब्स्टिट्यूशन for any language, whatever you want to define. If you know that one, just take one random language which is CFL, which you know is CFL, and take another language which is also a CFL. Now pick one of those languages and या कोई तीसरी लैंग्वेज भी ले सकते हो, न्यू लैंग्वेज L3 ले सकते हो which is also known to be CFL। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ L3 इज इक्वल टू L1 डॉट L2 बनाओगे तो आप हमेशा CFL में लैंड करोगे, क्योंकि जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो विद कंकैटिनेशन वो खुद में CFL है। मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ विद अ कंकैटिनेशन। अगर मैं बोल देती, मान लो ये लो L3 इक्वल टू क्या ले, AN/BN ले ले, ये या 0 एंड 1 एन, तुम्हारी कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए 0 एंड 1 एन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं SL3 इज इक्वल टू कंकैटिनेशन ऑफ L1 डॉट L2, इसको कैसे करोगे जरा बताना। चलो तुम ही करो सॉल्व, मुझे बता के दिखाओ इसकी सब्स्टिट्यूशन। ये लो, फर्स्ट क्रिएट अ CFG फॉर L3, L1 और L2 की तो मैंने बता ही दी है।
अजरक करके बताओ। गलती हो सकती है, दैट इज अलाउड, बट ट्राई। Anyone done? किया किसी ने? चैट में टाइप कर दो। अच्छा बोलते जाओ, आई विल राइट। What is the CFG for L3? 0 and 1 n. जीरो एंड वन है। What is the CFG? मैम 01 और 0S1। 01, 0S1. Thank you. Okay. Now I want to substitute this with L1. तो इसको मैं क्या लिख दूं? SL1. बताओ भाई बताओ। अगर L1 L2 से करना है कंकैटिनेट तो क्या करेंगे बताओ। Substitution of L3 is L1 dot L2. अच्छा वो सब छोड़ दो, L1 dot L2 के लिए क्या बनाओगे? बेटे कुछ बताना पड़ेगा। हम ऊपर L1 A और B लिखा है ना। लिखा है S1 goes to A and मुझे सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का वो बताओ। यही लिखा है। अगर ये कर लोगे तो आंसर समझ आ जाएगा, कंकैटिनेशन यूनियन के सारे प्रूफ समझ आ जाएगा। कोई नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगी आंसर।
S3 में क्या सब्स्टिट्यूट करूं? मैम यहाँ पे 01 होगा या AB होगा? तुम बताओ। ANBN है। अब ANBN में L1 L2 सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी 0 एंड 1 एन है। सब्स्टिट्यूशन किसको होगी? पूरी लैंग्वेज L3 में जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो L1 डॉट L2 की जा रही है। अब वो किसकी जाएगी? अब अगर अच्छा चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऐसा कर लो, let's simplify for you. Let me say that substitution for 0, but then it will change the question. Actually I don't want to simplify, sorry, it will change the question. What I want to say is that in this language सबसे पहले L1 डॉट L2 की CFG बनाओ, तो कि that is the hint. L1 डॉट L2 की CFG बनाओ। AB नहीं, मेरे को CFG चाहिए। S goes to AB S1 S2, नहीं बेटे, S1 S2 ऐसे ऐसे लिखोगे, AB नहीं लिखोगे। आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे इसको? आप इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? अब सोचने वाली बात है, सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? Should I leave it to you to answer? If you can prove this, that whenever you are making a concatenation of these languages, then you are able to, then you will be able to form a CFL. And if you are able to form a CFL of such a language, then all this, then the concatenation of all CFLs is also. और अगर इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं भी करते हो तो सबसे पहले ये बताओ क्या ये CFL है? ये सब छोड़ दो, अगर 0 1 n में क्या ये CFL है? इज दिस अ CFL? वो सब्स्टिट्यूशन छोड़ भी दो, इज दिस अ CFL? इज दिस अ CFL? yes ये CFL है। अच्छा, अब इसको छोड़ दो, अब आप एक और नई लैंग्वेज लो जहाँ पे L1 ले लो ANBN और L2 ले लो even. L1 is ANBN and L2 is even. L1 की CFG बताओ। ANBN and even. L1 की CFG बताओ। S goes to ASB Okay, S goes to ASB और AB और AB. Okay, और null okay. और कुछ हो गया? This is your L1. even की बताओ। even की मैं इसको S1 कहती हूँ, ठीक है? हम S2 से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस अनबैलेंस even की हाँ उसमें थी S हम्म, नहीं बैलेंस अनबैलेंस वाला पता नहीं SAA और BB फिर ब्रैकेट में है वो हाँ, ब्रैकेट में आता CFG में। नहीं मतलब तो कैसे और लिखते हैं बताओ, तो दिखाया था मैंने, मेरे कोर्स पेज पे ही पढ़ा हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रही है मतलब। वो अनबैलेंस्ड करके लिखा था उस पे हाँ, वही वाली कहानी करनी है। कुछ और ले लो, XY ले लो, उसमें कोई टेंशन नहीं।
वैसे हुआ ना, एक है एस गो, हम्म। एस गोज टू एस, और फिर ए डबल ए और डबल बी, फिर लास्ट में एस। क्या ऐसा? डबल ए? डबल ए और डबल बी। ओके, फिर और क्या होगा? नहीं वैसा नहीं, एस जैसे उसके, एक तो डबल एस गोज टू डबल ए और डबल बी, और उसके स्टार्टिंग में भी एस और एंड में भी एस। मैं चैट में लिख देता हाँ, चैट में ले दो मुझे। मुझे ये लगा था इसमें 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में, फिर मैं आगे आगे तो और मुश्किल आ रहा है मुझे। चलो करो। एएस से विभू, ये किसका जवाब दे रहे हो? इवन इवन का? हाँ मैम, ये सिर्फ एक है। मैंने ये वाला नहीं करा, अभी करता हूँ। अनबैलेंस वाले भी देखने हैं ना, जिसमें यस एक मैम। वाला। तुमने कुछ ऐसा बोला है ना, S2। ये भाई नहीं जा रहा काम करके साइड में। चलो, तो S2 गोज टू ऐसा कुछ A S A और B S B और नल, ऐसा कुछ बोल रहे हो? यस मैम। और ऐसा भी और डबल ए और ऐसा डबल भी एस। करना है। हाँ हाँ। A1 B1 S, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हूँ। चैट में लिख दिया है मैंने, लगभग लगभग। सही लिखा है? कोई वेरीफाई कर दो इसकी चैट। एस एस बैलेंस, हाँ ठीक है, ठीक लिखा है। एस पहले क्यों आया? मैं वो तो दोनों साइड में देने का था। एस बैलेंस्ड, एस बैलेंस गो टू ए, नल तो नहीं आएगा ना इसमें? फिर नल नहीं आ रहा। नल अलग से दे देता हूँ, एस गोज टू नल। एस बैलेंस्ड, एस अनबैलेंस्ड, एस अनबैलेंस्ड। अगर मैं यहाँ अनबैलेंस डाल दूँ, अनबैलेंस डाल दूँ, बेटे ये ना जो बीच वाली है ना, इसमें देखो गड़बड़ है। एस अगर इसमें अनबैलेंस डाल दूं, अच्छा ये अनबैलेंस्ड एस अनबैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड एस अनबैलेंस्ड है। आई थिंक दिस सीम्स राइट। ऐसा ही डाला था मैंने जब आपने पूछा था ना, उसमें क्या कहते हैं, बॉक्स में एंट्री करने के लिए बोला था आपने। चलो, आई एम अज्यूमिंग, लेट मी अज्यूम दैट दिस इज करेक्ट। मैंने पूरा वेरीफाई नहीं किया, बट आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज करेक्ट, दिस लुक्स करेक्ट। एक बार बोलना, मैं फिर टाइप लिखना शुरू करती हूँ। हाँ, S2 गोज टू अनबैलेंस या बैलेंस पहले? बैलेंस वाला बोल, एस गोज टू एस बैलेंस्ड, S बैलेंस्ड S, ओके। फिर एस गोज टू एस अनबैलेंस्ड, S अनबैलेंस्ड, एस S अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, फिर से एस, ठीक है। उसके बाद और नल, नल नल बैलेंस। ओके, फिर बैलेंस्ड इज बैलेंस्ड इज ए और ए बी और बी बी, एंड अनबैलेंस्ड इज, ए बी और बी ए। ठीक है। अब लैंग्वेज बनाओ SL एंड SL इज डिफाइंड एज L1 एंड L2, कर सकते हो? यस मैम। तो कुछ भी नहीं करना, S गोज टू S1 S2 एंड S1 की कहानी ऊपर लिखी हुई है तुमने, और S2 की कहानी। तो कंकैटिनेशन इज आल्सो CFL because they both are CFL. यस
तो ये दैट इज द इंट्यूशन। अब इसको वर्ड्स में लिखना है, एग्जाम्पल लेके प्रूव करोगे तो मतलब एक एग्जाम्पल इज नॉट इनफ, सो यू हैव टू क्रिएट अ जनरलाइजेशन बिकॉज दिस इज अ CFL। व्हेन वी कंकैटिनेट दीज टू लैंग्वेजेस इट विल आल्सो फॉल इन CFL बिकॉज जब आप पहली लैंग्वेज लगा रहे हो इट इज एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा, ऐसा बोल सकते हो। अगर मैं होती तो मैं लिखती कि वो पुश डाउन ऑटोमेटा से पहली लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है। Instead of going to start state, we can simply move to the next state of the push down automata where it starts accepting the words in L2. अगर बहुत ज्यादा मतलब आपको चाहिए कि कैसे प्रूव करना है तो मैं ऐसे लिख देती, ठीक है। ओके मैम। और क्लोजर का भी सेम है, क्लोजर इज ऑलवेज रेगुलर बिकॉज रेगुलर है तो उसमें भी आएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा में भी आएगा, और पुश डाउन ऑटोमेटा में आएगा तो आपने कुछ भी नहीं करना। जो आपकी ओरिजिनल S1 थी उसमें S goes to S1 स्टार करना है, मतलब यू हैव टू जस्ट शो दैट S goes to continuous occurrences of SS1, ऐसा कुछ S1 how are you going to stop, ऐसा कुछ कर देना तो वो क्लोजर बन जाएगा, ठीक है। क्लोजर की लैंग्वेज ऐसे डिफाइन कर सकते हो, बार बार सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और कभी जाके टर्मिनेट कर दोगे। टर्मिनेट कैसे होगा, एस ऑलवेज गोज टू SS1, अगली बार ऐसा कुछ कर दोगे ना, और S1 में S1 की सारी डेफिनेशन आ जाएगी। दिस विल डिफाइन अ क्लोजर फॉर यू। Okay, you have to not just you, for everyone I'm saying that you will have to think and practice a lot. अगर नहीं करोगे तो this will not become clear. एंड एग्जाम के टाइम पे हमें ओपन बुक भी हो रहा है तो बुक में कहीं ये सारी कहानी नहीं लिखी है, हॉपक्रॉफ्ट पढ़ लो कहीं पे भी नहीं लिखी है कहानी, फिर बुक में ढूंढ नहीं पाओगे ओपन बुक एग्जाम में कि कहाँ से आंसर देना है। तो ये सारी चीजें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नेवर नो हाउ एंड वेयर टू आंसर। Anyways, now I am moving to another portion which is homomorphism. कोई define कर सकता है what is homomorphism? Anyone who can help me in telling what is homomorphism? Maths में पढ़ते हैं आप, शायद पढ़ के आए हो अलजेब्रा, अपने electives में भी पढ़ा है आप लोगों ने। homomorphism क्या होता है? मैम सेम स्ट्रक्चर, मतलब मुझे इतना पता है। सेम स्ट्रक्चर कैसा? पता नहीं, मतलब सेम शेप हो या स्ट्रक्चर। देखो, अगर मैं सेट थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म की बात करती हूँ, लेट मी कॉल दैट यू नो देयर इज अ सेट A एंड देयर इज अ सेट B। तो जब यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट्स की आपस में अगर कोई रिलेशनशिप है, इफ एट ऑल, अगर कोई नहीं है, रैंडम एलिमेंट्स हैं, मान लो अगर नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 so on, so there is some order between the elements. The only relationship between these elements is that there is an order. Because there is an order, and when you map it to some another set, let me map it to a set of even numbers, then that order, that relationship is maintained. In this case it is an order ki 1 है तो उसका 2 बनेगा, 4 बनेगा, but it will always be that this order is maintained. So the relationship is preserved if then you are talking about order. Similarly, if we are saying that these numbers have apart from order, probably they are occurring in some sorted form, or A, जैसे इसमें A and B में हमेशा हम बोलते हैं A is always come before B. अब अगर इसको मैं 0 1 वैल्यूज में मैप कर दूं, अगर A and B है फर्स्ट पार्ट में, and let me call it A and B n. Now I want to map it to a set which has only zeros and ones. So when this set has only zeros and ones, so we are saying that A's should always come before B's. So इस केस में जब आप बात कर रहे हो तो zeros will always come before one. तो आपने मैपिंग करी है, एक होमोमॉर्फिज्म बनाई है कि एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर बीइंग मैप्ड टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट
while preserving the relationship between these elements. मतलब जो इनकी आपस में रिलेशनशिप थी, जब मैपिंग हुई तो उन मैपिंग का भी आपस में वही रिलेशनशिप रहा। ये समझ गए, ये होमोमॉर्फिज्म होती है। यस, एक बार फिर से बताना। okay, so what so let me take a real life example. Just give me a second to think about some real life example. Homomorphic is when you are morphing something into, अच्छा, फेस ऑफ देखिए मूवी, फेस ऑफ देखिए किसी ने, निकोलस के, जॉन ट्रेवोल्टा, ओ मेरे टाइम पे। अश्विन ने देखी होगी। Okay, चलो छोड़ो। Okay, so it was like my time movie when I was younger, so probably you won't relate to it. But face off में क्या होता है, वो फेस निकाल देते हैं एक कैरेक्टर का एंड उसके ऊपर दूसरे का फेस, एक एनिमी का फेस मैप कर देते हैं। मतलब नाउ दैट फेस इज कंप्लीट, दे मॉर्फ द फेस, मतलब एक्स का फेस के ऊपर वाई का फेस लगा देते हैं। तो आपने क्या किया, एक मैपिंग करी है एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे। उस मैपिंग में आपने क्या किया है कि आपने किसी और का फेस, एक फेस पिक किया, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज पिक करी और दूसरे उस पे सेट पे मैप कर दी। इसका फेस उठाया और इस पे लगा दिया, ठीक है। अब ये तो आपने मॉर्फिंग कर दी, बट मॉर्फिंग में आईज के ऊपर आईज ही आनी चाहिए ना, आईज के ऊपर नोज तो नहीं जाएगा। अग्रीड और नॉट? इफ यू वांट टू, सिमिलरली Yes, नोज ma'am. के ऊपर नोज जाएगा, लिप्स के ऊपर लिप्स जाएगा और ईयर्स के ऊपर ईयर्स जाएगा। बॉल्ड होगा या हेयरी एरिया होगा तो उसके ऊपर हेयर जाएगी। सो what we are saying is that when you are morphing, when you are mapping these things to another space, the order or the relationship which was there will remain intact in the mapping also. The order, maybe some things might change, like for example उसकी eyes के features change हो गए। Probably आपने जब mapping करी तो आपने brown की जगह blue eyes कर दी, that is possible, but eyes की जगह रहेंगी eyes। मतलब there is a function, there is some function, let me call it as homomorphic function, जो इसके ऊपर, इस element के ऊपर h लगाते हैं तो वो इसका part बन जाता है जब आपने वो बनाया। लेकिन इनके बीच में अगर कोई रिश्ता था आपस में कि देयर वाज सम ऑर्डर और प्रोबेबली देयर वाज सम रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो अगर अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसी फॉर्म में आ गई है तो दैट इज ओके, क्योंकि आपने फंक्शन बनाया है, आपने हर एलिमेंट को इस पे मैप किया, बट उनकी जो आपस की रिलेशनशिप है वो आपने नहीं छेड़ी है, आपने सिर्फ उसको दूसरे फॉर्म में मैप किया है। दैट इज होमोमॉर्फिज्म। समझ आया? ये मैथ्स का फंडा है, मुझे नहीं समझाना चाहिए। आया समझ? हाँ ना? Yes, ma'am. अच्छा, एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग करते हो तो आपने क्या किया, मॉर्फ कर दिया, आपने अपना घर दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। सो बेसिकली यू मूव द एलिमेंट्स ऑफ योर होम टू सम अदर एलिमेंट्स। अब हो सकता है कि उस घर की डायरेक्शन अलग हो, जिस आपके प्रेजेंट होम है उसके हिसाब से डायरेक्शन अलग हो, बट किचन किचन में ही जाएगा, बेडरूम बेडरूम में ही जाएगा। बेडरूम का सामान कहाँ जाएगा? बेडरूम में जाएगा। मैपिंग कहीं और हुई है, बट द रिलेशनशिप, किचन के एलिमेंट्स आप बेडरूम में नहीं डालोगे, राइट? तो द रिलेशनशिप inside of the object remains same. That is another case कि वो जो element है वो खुद morph हो गया है, but internal relationship of all these elements still remain the same even after mapping. Okay? Yes, ma'am. I hope so. जिसको नहीं क्लियर है मैं लास्ट बार एक बार और समझा सकती हूँ, अगर तुम पूछना चाहती हो तो पूछ लो, अगर पूछना है। लास्ट बार बोलूंगी, बताओ ना, बढ़ जाओ आगे। अगर ए एन बी एन को 0 एंड 1 एन पे मैप करूं तो मैं ये बोल रही हूँ, फॉर ऑल एज अप्लाई अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए सच दैट इट बिकम्स 0, एंड फॉर ऑल बी apply homomorphism on B, apply a function, homomorphism is a function such that it becomes a 1.
So you have mapped something which was in A and B domain to 0 and 1. Now, but within this A and Bn, A's always occurred before B's. So this relationship will remain intact even after mapping. That is zeros. The mapping of A will always occur before the mapping of the, so that property will remain. You have just changed the face of this, but all the other properties remain intact. इससे अच्छा एग्जांपल मैं नहीं दे सकती, सॉरी. एनीथिंग? हाथ जोड़ लिए तुमने. हाँ, मतलब कुछ ऐसे कहानी करी, कुछ ऐसा किया कि ए को A 0 बन गया और B 1 बन गया. लेकिन हमारी इस कहानी में हमने ये बोला, अगर आपकी मान लो हम बोलते कि ऑड नंबर ऑफ A's हैं और इवन नंबर ऑफ B's हैं, तो आपने जब 0 और 1 पे मैप किया होता तो आपके ऑड नंबर ऑफ zeros एंड इवन नंबर ऑफ B's रहते. सिंपल, मतलब दैट प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज, ओनली द फेस ऑफ इट विल चेंज. ओके, एक बार पढ़ लेना यार इंटरनेट पे ना, कोई एग्जांपल्स देख लेना. या तो तुमने मैथ्स पास कैसे किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. ये तो पढ़ते हो तुम. कौन से उसमें? हाउ आर यू क्वालिफाइंग, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा. तुमसे कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट पूछते हैं, वो भी नहीं याद होते. डीएसएल को भी नहीं याद है तुमको, नेटवर्क्स भी नहीं याद है. जब मैं कोई भी कहीं सा भी एग्जांपल उठा लेती हूँ तुमको याद नहीं होता, और अब तुम मैथ्स भी नहीं बता रहे हो, तो फिर क्या पढ़े क्या इतने साल? ये होमोमॉर्फिज्म कौन सी क्लास में आया था? आई एम श्योर आपने जी पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा होगा, जी में मैथ्स ही पढ़ा होगा, और क्या लिया होगा. हाँ, लिया तो वैसे मैथ्स ही था. तो मैं 99% श्योर हूँ कि होमोमॉर्फिज्म पढ़ाया होगा. ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है. हाँ, तो होमोमॉर्फिज्म की बात में ये प्रतिका ने कुछ बोला है ना. ये प्रतिका तुमने कहाँ पे पढ़ा था, ये सुना कहाँ से था? प्रतिका ने बोला था, प्रकृति ने बोला था? अंशिका ने बोला था. अंशिका ने बोला था. बताइए अंशिका अंशिका जरा. मैम ये तो मतलब जनरल टर्म्स में बोला था मैंने. पिटाई ना पड़े. मैथ्स में तो मतलब मैम नहीं. होमोजीनियस पढ़ा था मैम, ये नहीं पढ़ा. पॉलीमॉर्फिज्म सुना था, ये होमोमॉर्फिज्म. ये रिलेशन एंड फंक्शन का नहीं था ना. अच्छा, इसमें तो नहीं था ना. polymorphism is it is being mapped to multiple forms. So homomorphism is it is being made mapped to similar forms. Homo is similar, right? Morphing is just changing the face of it, you know, morphing something, but its properties remain the same. For example, H2O है, morph कर रहे हो उसको solid to water में, बट उसके इंटरनल बॉन्ड्स तो वही रहते हैं ना. अगर ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है यार हमने होमोमॉर्फिज्म 11th-12th में. क्या बात कर रहे हो, कितने यस मैम डिफरेंट स्ट्रक्चर के वो बनाते थे, मतलब प्रॉपर्टी सेम होती थी. ऑर्गेनिक हो शायद. एंड ओके. यस मैम, ऑर्गेनिक में. मुझे लेकिन मैम, हमने ये टर्म ऑर्गेनिक नहीं में पढ़ा पढ़ा था था. मैम, शायद होमोमॉर्फिज्म टर्म नहीं था. मुझे ना 20 साल हो गए ये टॉपिक पढ़े हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. 20 साल से पढ़ा भी तो रहे हो होमोमॉर्फिज्म. केमिस्ट्री चलो, अब दूसरा है CFLs आर क्लोज अंडर रिवर्सल. देखो कई जगह ये ऐसे लिखते हैं LR, चाहे तुम्हारे असाइनमेंट्स में भी ये डाउट होता है, और कई जगह ऐसे लिखते हैं. बोथ ऑफ दीज मीन द सेम थिंग. रिवर्सल मतलब वर्ड है, वर्ड का रिवर्स. मतलब अगर आपके पास A1 A2 AN है तो इसका रिवर्स हो जाएगा AN to A1. तो इसमें लिखा है कि अगर ग्रामर दे आर क्लोज इन द रिवर्सल. LG है, उसके द ग्रामर हैज नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस एंड स्टार्ट सिंबल. तो जो सिर्फ प्रोडक्शंस को हम रिवर्स कर देते हैं. प्रोडक्शंस को रिवर्स करने का मतलब है अगर प्रोडक्शन ऐसे दी थी तो ऐसे हो जाएगी. B पहले आ जाएगा, फिर नॉन टर्मिनल 3 आ जाएगा, फिर A आएगा एंड फिर नॉन. देन ऑल्सो इट विल रिमेन अ CFL, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मान लो आपके ऐसा कुछ था NT2 goes to A,
तो अब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और NT3 को मान लो मैं B बोल देती हूँ, तो ये B B A हो जाएगा. तो दिस विल रिमेन, दिस विल नॉट बी रिवर्स कि A goes to NT2, ऐसा नहीं होएगा. तो because terminals are remaining the same, so ultimately you are going to end up, but you are going to, because the productions have been this reversed, so all the words will be formed in reverse. So it is just like, you know, forming the mirror image of the binary tree. मिरर इमेज तो याद है बाइनरी ट्री की? बाइनरी ट्री की मिरर इमेज याद है? हाँ या ना? ये तो अभी पढ़ के आए हो पिछले सेमेस्टर में. हेलो. यस मैम, यस मैम. यस मैम. चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कुछ ऐसा, यू नो, NT1 NT2, ठीक है, एंड लेट्स से ये मेरा पार्स ट्री मैं बना रही हूँ, ठीक है, NT4 NT5, लेट्स assume. So and let's say this goes to B, this goes to C, and this goes to A. Okay, now if you form the mirror image of the tree, start symbol will remain the same. ये राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा ऐसा. यस और मैम, उस तरफ NT. thank God if you remember the mirror image. So I am proving this. Okay, एग्जाम में इसमें बुक में प्रूफ नहीं लिखा, बुक में बोल रहा है इंडक्शन से प्रूफ करो. मेरे को ये ज्यादा सिंपल लगता है कि लेट्स assume that the grammar is in the Chomsky normal form and let's assume that the tree, you know, looks like this. Had I been there, I would have proved like this. आप बाकी आपको कैसे कन्वीनियंट है वो आप देख लेना. अब क्या आएगा यहाँ लेफ्ट में, क्या आएगा? NT4, थैंक यू, NT5 एंड NT4. मिरर इमेज बन गई. और फिर आ गया C, फिर आ गया B, फिर आ गया A. रिवर्स हो गया. ABC CBA हो गया रिवर्स. यस मैम. पास्ट ट्री बना लिया तो पुश डाउन ऑटोमेटा भी बन जाएगा. कहानी खत्म. तो आपने ये एग्जांपल नहीं लेना, आपने ये बोलना है कि let there be a grammar which has V set of non-terminals, T set of terminals, T set of productions, and S as the start symbol. Now for productions, I have to reverse the production in this format. So when I try to form the parse tree of any particular word, then the reverse word can be formed by creating a mirror image of the same tree. And because terminals remain the same, so when we traverse the tree from left to right, यही होता है ना tree traversal, so I will get a reverse of the word. So that's why CFLs are closed under reversal. Clear? Yes. थैंक यू. ये बुक में नहीं है एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक कहीं पे मिलेगा मिरर इमेज का एग्जाम्पल, मगर मुझे बहुत लॉजिकल लगता है ये इस तरीके से प्रूव करना. तो अगर आपको ये आसान लगे, आपको भी आसान लगे, तो इसी तरीके से प्रूव करना. नहीं तो बुक में इंडक्शन के कुछ तरीके दिए हैं, ऐसे पता नहीं इसमें दिया नहीं है, पर बुक में लिखा है इंडक्शन से प्रूव करो, तो देख लेना, जो आसान लगे वो कर लेना. Then they are saying that CFLs are not closed under intersection. इसमें देखो जनरलाइज में आपको प्रूव करना पड़ता है यूजिंग इंडक्शन और सम फॉर्म. अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो वन एग्जांपल इज एनफ. फॉर एग्जांपल इन्होंने एक लैंग्वेज दी 0 and 1 and 2 raised to I, मतलब zeros and 1 should be same and 2's can be any arbitrary. तो दिस इज अ CFL. क्यों? क्योंकि मेमोरी आपको किसके लिए रखनी है? सिर्फ 0 और 1 के लिए, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए. जो 2 है वो कितने मर्जी आ जाए रैंडम, हमें फर्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज जस्ट लाइक यू नो हैविंग 0 and 1 and नथिंग आफ्टर इट. सिमिलरली यहाँ पे आपने कितने मर्जी रैंडम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ो, आपके 1s and 2s सेम होने चाहिए. सो these languages are CFL, but we have already proven that 0 and 1 and 2n are not CFL using your pumping lemma. You have already proved, but this particular language is an intersection of L1 and L2. So we have at least one example which is not a CFL.
So we have proven that CFLs may not necessarily be closed under intersection. कुछ हो सकती है कि हो, बट सारी नहीं है, क्योंकि एक तो मिल ही गया हमें एग्जाम. ओके. अब ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आएगा तो सिर्फ इतनी कहानी लिखनी है. 5 नंबर का आएगा तो क्या करोगे? पंपिंग लेमा लगा के इसको भी प्रूव करोगे. यस. अरे भाई सो मत. यस और नो. If this is a 2 marks question, this is enough that we know that this is not a CFL. But if you have a 5 mark question, this is not enough. Then you have to use pumping lemma to prove that 0 and 1 and 2n is not CFL. This is same as आपने जो AN, VN, CN पढ़ा था, ये वही है. तो इसको फिर पंपिंग लेमा से प्रूव करना. 3 नंबर उसके मिलेंगे और 2 नंबर इसके मिलेंगे. चलें आगे. यस मैम. If यस L, मैम. अभी थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो या तो 5 मिनट ब्रेक ले लो, क्योंकि अब मैं खत्म करा के छोड़ूंगी. या तो 5 मिनट ब्रेक ले लो या पढ़ लो. बताओ क्या करना. मैम ब्रेक दे दो. ले लो. 1:54 है. 2 o'clock मिलते हैं.
Okay, I'm back. Are you back? Okay, I'll start now. So, everyone is here. Please respond. Yes, ma'am. कौन सो गया है? कौन बोल रहे हैं? अभिनव. Okay. So now the theorem is that अगर L एक context free language है और R एक regular language है, तो इन दोनों का intersection context free होगा. देखो, R या रेगुलर लैंग्वेज खुद में एक CFL होती है क्योंकि इट इज अ सबसेट ऑफ CFL, और L भी एक CFL है. तो रेगुलर ना भी हो इनका इंटरसेक्शन तो CFL तो होगा ही होगा, क्योंकि L के सारे वर्ड्स जो हैं वो CFL का पार्ट होते हैं. अब इसको प्रूव कैसे करें? क्वेश्चन समझ आ गया? थ्योरम समझ आ गई? थ्योरम समझ आ गई? Yes, ma'am. समझ आ गया, prove करो. Yes, the question is that if L is a CFL context-free language and R is a regular language, then their intersection is also CFL. अच्छा, मुझे ये बताओ, दो रेगुलर लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन क्या होता था? Regular. रेगुलर होता था. एंड दो CFLs का इंटरसेक्शन मे और मे नॉट बी CFL. ये हमने अभी ऊपर किया है. हमने एक लैंग्वेज फाइंड आउट किया है ANDNCN which is not a CFL. अब हम बोल रहे हैं एक CFL है और एक रेगुलर लैंग्वेज है, इनका इंटरसेक्शन CFL तो होगा ही होगा. ये पुश डाउन ऑटोमेटा का स्टैक है और ये इनपुट टेप है. ये बुक की नोटेशन थोड़ी फर्क है, तो आप समझ लो. अगर P एक पुश डाउन ऑटोमेटा है और पुश डाउन ऑटोमेटा में सेट ऑफ स्टेट्स हैं जो है QP मीन सेट ऑफ स्टेट्स इन पुश डाउन ऑटोमेटा. सिग्मा इज योर इनपुट अल्फाबेट जिसमें ABC या जो भी होता है. गामा स्टैक अल्फाबेट है. गामा और सिग्मा मिलते जुलते भी हो सकते हैं, इसमें XY वगैरह भी कुछ भी हो सकता है. डेल्टा P इज ट्रांजिशंस ऑन पुश डाउन ऑटोमेटा. ट्रांजिशंस ऑन पुश डाउन ऑटोमेटा ऑफ दिस फॉर्म. इसका मतलब ये है कि आप स्टेट Q में हो, इनपुट टेप में A पड़ा हुआ है और मतलब बेसिकली आपका हेड पॉइंटर यहाँ है एंड कोई एक सिंबल X स्टैक अल्फाबेट में से, मतलब वेयर X बिलोंग्स टू गामा स्टैक अल्फाबेट. तो कुछ X यहाँ पे पड़ा हुआ है और इनपुट में A पड़ा हुआ है. हमें नहीं पता अभी स्टैक में क्या था, इसलिए हम उसको कोई X बोल देते हैं. ABCD भी बोल सकते हो, बट हम कंफ्यूज ना करें इसलिए ऐसे लिख रहे हैं. तो ट्रांजिशन ऐसे दर्शाए जाते हैं कि आप स्टेट Q में हो ऑफ विच बिलोंग्स टू दिस सेट. इनपुट का जो हेड पॉइंटर है इनपुट टेप का वो यहाँ पड़ा है और उस पे A लिखा हुआ है. कोई इनपुट सिंबल दैट बिलोंग्स टू सिग्मा, मतलब हो सकता है B भी हो. यहाँ पे A का मतलब इज एनी इनपुट सिंबल दैट बिलोंग्स टू सिग्मा एंड X बिलोंग्स टू गामा, मतलब स्टैक पॉइंटर यहाँ पे है. So this is what a transition is. So when you read this, something happens. You change to some other state, which is let's say Q2 in push down automata. कुछ ऐसा होगा. So that is a transition. QP जो है वो push down automata की initial state है, starting state. मतलब initially आप ऐसे start करते हो कि stack alphabet है, सॉरी इनपुट टेप है,
मान लो यहाँ पे कुछ हो ब्लैंक सिंबल, आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी और आपका जो स्टैक होगा वो ब्लैंक होगा। आप इनिशियल स्टेट स्टार्ट करते हो तो QP इज एन इनिशियल स्टेट विच वेयर पुश डाउन ऑटोमेटा लुक्स लाइक दिस। योर स्टार्ट सिंबल इज Z0, जो आप S लेते जा रहे थे ना वो आपका Z0 है, दिस इज योर स्टार्ट सिंबल। एंड एक्सेप्टिंग स्टेट्स आर FP, तो जो भी स्टेट्स हैं जो एक्सेप्ट वाली स्टेट्स होती हैं उस सेट को इन्होंने FP बोला है, फाइनल स्टेट्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। अब इसमें एक या एक से ज्यादा एक्सेप्ट स्टेट हो सकती है, रिजेक्ट की या हॉल्ट की बात नहीं कर रहे। फंक्शन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा समझ आ गया? अभी प्रूफ नहीं किया, अभी से मशीन समझाइए। समझ आ गई है मशीन कैसी है? यस मैम। ओके, अब इसने पता है क्या करना है, इसने बोलना है, ये बोल रहा है कि मैं पुश डाउन, जब भी कोई इनपुट आएगा तो मैं उसको पुश डाउन ऑटोमेटा पे भी चलाऊंगा और मैं उसको फाइनाइट ऑटोमेटा पे भी चलाऊंगा। और अगर दोनों फाइनल स्टेट में पहुंच गए एंड तक, एंड ऑफ इनपुट तक, तो इसका मतलब दैट वर्ड लाइज बोथ इन योर पुश डाउन ऑटोमेटा एज वेल एज इन फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करने वाले CFL होते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करने वाले रेगुलर होते हैं। तो वो वर्ड जो रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट है और CFL का पार्ट है, इट शुड एंड इन एन एक्सेप्ट स्टेट इन अ CFL। अगर वो FA में अगर एंड ना भी कर पाए, उसको पुश डाउन ऑटोमेटा में तो एंड करना ही पड़ेगा, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ, इट विल बी अ CFL। समझ आया बात? You are running the input, running the entire input on both push down automata as well as in your finite automata। अब finite automata की कहानी इसने ये लिख दी है कि अगर आपका ये finite automata है तो Q automata is a set of states in FA, मतलब Q0, Q1, Q2, Q3। sigma is our input, डेल्टा आपके ट्रांजिशन है, मतलब एक स्टेट में इनपुट आया तो आप आगे बढ़ गए या वापस आ गए, ये आपके ट्रांजिशन हैं डेल्टा ए। QA आपकी इनिशियल स्टेट है, मतलब वो जो माइनस वाली स्टेट होती है उसका नाम इसने QA रखा हुआ है। QP इनिशियल स्टेट थी PDA में, और FA इज द सेट ऑफ फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट्स। तो आपने यहाँ पे एक कंबाइंड पुश डाउन ऑटोमेटा, एक नया पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया। आपको फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रूव करने वाले हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ CFL एंड रेगुलर will always be a CFL। तो CFL प्रूव करने के लिए सिर्फ पुश डाउन ऑटोमेटा प्रूव कर देना है ना पे। तो इन्होंने क्या किया, इनपुट लिया और इस इनपुट को किसी स्टेट ऑफ FA में चलाया और किसी स्टेट ऑफ PDA में चलाया। उस पुश डाउन ऑटोमेटा के पास स्टैक भी था और जो भी था उसको एंड किया और आगे बढ़ाया, मतलब बेसिकली इसमें चलाते गए, और जब ये और ये दोनों एक्सेप्ट में पहुंच गए तो उसने उसको एक्सेप्ट करा दिया, अगर रिजेक्ट में पहुंचे तो रिजेक्ट करा दिया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इसकी वजह से इन्होंने एंड लिखा, मेरे हिसाब से और होना चाहिए, बट लेट्स फॉलो देम। मेरे हिसाब से और होना चाहिए कि अगर इसमें एक्सेप्ट हो गया तो उसमें भी हो जाएगा, बट वैसे हो ही जाएगा। एंड विल ऑल्सो बी ट्रू, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं इंटरसेक्शन तो इसका पार्ट भी रहेगा। फाइन, वी कैन टेक एंड। सो वी आर सेइंग कि एक कंबाइंड पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हो जिसकी स्टेट्स कौन सी होंगी, सेट ऑफ स्टेट्स इन पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सेट ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा। सो पुश डाउन ऑटोमेटा की सारी स्टेट्स मिला लो और सारी स्टेट्स उसकी मिला लो। अल्फाबेट दोनों में सेम है, स्टैक नया जुड़ गया है, तो स्टैक क्योंकि FA में नहीं था, सिर्फ इसके पास था, तो स्टैक अल्फाबेट एक ही रहेगा। Transitions will be transitions of push down automata as well as transition of finite automata, and this should be Z0. This is your start symbol, and accepting states will be accepting state of push down automata and accepting state of finite automata. अगर आपका इनपुट आया, अगर आप स्टेट Q में हो और आपके इनपुट टेप पे P पड़ा हुआ है, मतलब आप पुश डाउन ऑटोमेटा में हो, एंड द ट्रांजिशन इज कि इफ यू आर इन सॉरी if you are in state Q in your PDA and you are state P of
फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड आपके इनपुट टेप पे क्या पड़ा है, ए पड़ा है, और स्टैक में क्या पड़ा है, एक्स पड़ा है। ये समझ आई ट्रांजिशन? ट्रांजिशन क्लियर है? यू आर इन स्टेट क्यू ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा एंड स्टेट पी ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। आपकी जो इनपुट है, सॉरी यहाँ पे इनपुट है ना, तो उस इनपुट स्टेट में कोई लेटर पड़ा हुआ है, लेट मी कॉल इट एज ए। अगली बार बी आ रहा है, सो आई एम हियर, सो क्यू हियर, पी हियर, यू आर रीडिंग एन ए, एंड आपके स्टैक में कोई सिंबल पड़ा है, इट कुड बी ए, इट कुड बी बी, एनीथिंग, बट एट द top of the stack there is some letter, and you are saying that it is a set of all pairs r comma s comma gamma, where rs is the states in this, gamma is what you are reading. So you are saying that you are going to move in a new, so this can be decided as a state in the new push down automata, which is the transition in new push down automata, where you are transitioning from push down automata as well as transitioning in from the finite automata. And the r comma gamma is basically the transition, that is what is happening when you read this input symbol and what is happening to the stack. So जब भी आप push down automata में कुछ भी read करते थे, ये आपका स्टेट था, आप यहाँ पे इनपुट सिंबल से कुछ रीड करते थे, कभी कभी आप स्टैक में कुछ पुश करते थे या स्टैक से पॉप कराते थे और आप नई स्टेट पे मूव कर जाते थे। Is this clear? Is the movement anything that is on the stack? जब मैं ट्रांजिशंस की बात कर रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि यार ये x है ना, मुझे नहीं पता स्टैक में क्या पड़ा है, स्टैक में a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, एनी ऑफ द स्टैक सिंबल, और ब्लैंक भी हो सकता है, तो ये x कुछ भी है। इनपुट टेप पे तो हमें पता है क्या है, क्योंकि हम उसको रीड कर रहे हैं। अब दिस a जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, दिस a एक्चुअली बिलोंग्स टू योर सिग्मा, this could be a b c d 01 whatever, but we are reading it now, and x means anything that is lying on the stack. So we are saying कि अगर push down automata ये defined है, अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो ओरिजिनली फाइनाइट ऑटोमेटा में या पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो वो नए पुश डाउन ऑटोमेटा में कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपका ट्रांजिशन है, स्टेट ट्रांजिशन है, दैट इज यू आर ट्रांजिशनिंग इन push down automata as well as finite automata, and pair r comma gamma is saying that in my push down automata I am in state q, I am reading an a, and my stack has something in it, something could be blank, something could be any stack alphabet which you might have pushed. तो जब भी आप पीडीए में मूव करोगे, तो आप जब भी पीडीए में कोई मूव करोगे, उस मूव को आप पी प्राइम में सिमुलेट कर सकते हो, और ये पी प्राइम क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ए एज वेल एज पी, सो दिस इज एफ ए एंड दिस. So when you are moving in P, you can completely move in P prime by doing this. You are saying कि you will read, you are saying you can move in P prime along with the state DFA and in this component. So you are moving in both, and you are, what if A belongs to your this? So you will take a move in the push down automata as well as in your finite state automata. And if A is blank, मतलब आपका जो input टेप थी ये खत्म हो गई है, अब blank पे पहुंच गए हो, ये सारा कंज्यूम हो गया है, तो this finite state automata will not change, but PDA हमेशा blank टेप पे भी फंक्शन कर सकता है.
ये हमारे रूल्स हैं। अभी तक हमने सिर्फ रूल डिफाइन करे हैं, अभी हमने प्रूफ कुछ नहीं किया। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाला FA है, नीचे वाला एक पुश डाउन ऑटोमेटा है, और हमने ये बताया है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो आप इनपुट टेप से पढ़ते जा रहे हो, यहाँ से पढ़ते जा रहे हो, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप पुश डाउन ऑटोमेटा में भी मूव कर रहे हो और फाइनाइट ऑटोमेटा में भी साथ साथ मूव कर रहे हो, जो भी इनपुट आ रहा है ABC and then blank, and stack is changing accordingly, whatever is happening it is changing accordingly. But if you encounter a blank on your input tape, this will not move, but the PDA can still move and it can still make a move on null input. ये पीडीए की प्रॉपर्टी है, पीडीए कैन मेक अ मूव और नल इनपुट। आपने यूज किया हुआ है, जैसे आपको ब्लैंक एनकाउंटर होता है आप एक्सेप्ट पे चले जाते हो, पर जब फाइनाइट ऑटोमेटा में नल, अगर आपको याद हो हमने नल मूव्स कभी भी अलाउ नहीं किए थे, याद है ना, नल मूव्स अलाउड नहीं थे फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो वो यही चीज हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्लैंक आएगा या नल आएगा तो FA को नहीं चलाना है, उसको वहीं रोक देना है, बट अगर यहाँ पे ब्लैंक आया तो पीडीए फिर भी चल सकता है। अगर आप P में होते, नंबर ऑफ मूव्स मेड बाय PDAs इन द ओरिजिनल पुश डाउन ऑटोमेटा विच वाज नॉट कंबाइंड, ये वाला कंबाइंड था, ये P प्राइम था जो FA से कंबाइन हो गया था, P was which is your original push down automata which accepted the word। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप ओरिजिनल पुश डाउन ऑटोमेटा में, क्योंकि क्या था हमारा, हाँ, ओरिजिनल पुश डाउन ऑटोमेटा की स्टेट किसी एक स्टेट में पढ़े थे, अगर आप यहाँ पे क्यू स्टेट में हो और आपने वर्ड पढ़ा, पूरा वर्ड पढ़ा और आपके स्टैक में ब्लैंक आ गया, तो आप किसी तरह से बहुत सारे मूव्स करके, इनिशियल आपने इनपुट सिंबल पढ़ा, इनपुट स्ट्रिंग पढ़ा, आपने क्यू P स्टेट से स्टार्ट किया, आप इसको पढ़ते गए तो आपका पूरा, दिस इज योर entire word on the tape that got finished, and आपने start किससे किया था, blank on your stack। now you kept on reading elements of, रुको मैं को दोबारा समझाता हूँ, So if you are in original push down automata which was not combined by the finite, मतलब CFL पढ़ रहे हो PDA में, अब आपके पास यहाँ पे कोई वर्ड पड़ा है, एंड में नल आ गया, तो वर्ड का एंड यहाँ पे बताते हैं, तो दिस एंटायर थिंग इज अ वर्ड ऑन इनपुट टेप। अब इनपुट टेप है, इसको आप A कुछ कह दो, पुश डाउन ऑटोमेटा की आप किसी स्टेट QP में स्टार्ट कर रहे हो, यस दिस इज योर स्टार्ट स्टेट, यू आर इन हियर, यू आर रीडिंग द एंटायर वर्ड एंड यू वांट टू रीड द एंटायर वर्ड, एंड आपके स्टैक में इनिशियली ब्लैंक पड़ा हुआ है। सो फर्स्ट इज द स्टेट, सेकंड इज व्हाट यू आर रीडिंग, एंड थर्ड इज योर स्टैक सिंबल। अब आप इस स्टेट में हो, आपने कुछ पढ़ा, आपने कोई मूव किया, फिर कोई मूव किया, फिर कोई मूव किया, करते करते 2-3 स्टेप्स में आप कहाँ पहुंच गए, एक ऐसी स्टेट में जो कि फाइनल थी, और आपने ये सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट कर दिए थे और आपने ब्लैंक पढ़ लिया था, और ये गामा है ना, बेसिकली स्टैक में अब कोई चीज पड़ी हुई थी विच वॉज गामा और विच वॉज सम स्टेट विच टोल्ड यू दैट इट इज डन। तो अगर P में आप ये कर पाए, ये आप तभी कर पाओगे, मतलब यू कुड एग्जॉस्ट द स्ट्रिंग इनपुट टेप एंड यू कुड एंड अप इन अ फाइनल स्टेट ओनली इफ, अगर आप पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टार्ट करते और only if you started in a push down automata की initial state and initial state of finite automata। मतलब अब ये तब कंप्लीट होगा, जब भी हो सकता है ये तब एक्सेप्ट होगा जब आप कंबाइंड वाले पीडीए में इनिशियल स्टेट ऑफ पीडीए एंड इनिशियल स्टेट ऑफ
ऑटोमेटा में स्टार्ट करते, इनपुट सिंबल पढ़ते और स्टैक में ब्लैंक होता, और कुछ स्टेप्स बाद आप इन दोनों में फाइनली एक्सेप्ट स्टेट पे पहुंच जाते और आपका सॉरी फाइनली आप दोनों की फाइनल स्टेट में पहुंच जाते, आपका इनपुट टेप ब्लैंक हो जाता और स्टैक में जो भी ब्लैंक को सिग्निफाई करता है वो पड़ा रहता। तो ये दोनों कंडीशंस, अगर ये तब ट्रू होगी जब ये ट्रू है और ये तब ट्रू होगी जब ये ट्रू है। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो तो लैंग्वेज CFL है, ठीक है। So you have to find the number of moves. So number of moves will always be equal to the number of moves that were used to run this input string. So we are not worried about what happens inside of FA because आपका जो blank है वो process नहीं होता है FA में. So maybe number of moves in your push down automata might be more than your finite automata, but we are simply saying that if the number of push down moves in push down automata P and number of moves in combined push down automata P prime is the same, and we end up finishing the string, we end up finishing this up, then we are saying that the language L intersection R is a CFL. Is this clear? So this is only possible if accepting state of push down automata and accepting state of A, and when you are running it in only P, they all are the same, and the number of steps to do this and number of steps to run on this is also same. Then we can say that P accepts W if and only if both P and A accept W. Clear? समझ आया? कहाँ चले गए? कहाँ गए? यहीं पे देख रहा था मैं। अरे कुछ नहीं बोला, अगर तुम डायग्राम्स छोड़ दो, ये कहानी छोड़ दो, ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए समझाया। मैं एक बार और दोबारा इसमें क्लियरली लिख दूंगी अगर नहीं भी क्लियर है। सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा में अकेला स्ट्रिंग चला दो, ये इनपुट टेप है और ये तुम्हारा कुछ पुश डाउन ऑटोमेटा है, उसके पास स्टैक है। ये बोल रहे हैं जितने स्टेप्स इसको एग्जीक्यूट करने में लगेंगे उतने ही इसको एग्जीक्यूट करने में लगेंगे, प्रोवाइडेड कि आप इसमें ब्लैंक रीड कर लो, मतलब पूरा स्ट्रिंग खत्म कर दो, एंड प्रोवाइडेड इसके एक्सेप्ट में पहुंच जाओ और इस वाले के एक्सेप्ट में एक साथ पहुंचो, एक साथ पहुंचना है। दैट थिंग इज ओनली, ही इज ओनली सेइंग दैट व्हेन यू आर रीडिंग दिस, इस पुश डाउन ऑटोमेटा और इस पुश डाउन ऑटोमेटा के नंबर ऑफ स्टेप सेव होने चाहिए, मतलब once you are exhausting the string you should reach the accept state and you should reach the accept state at the same time. That is what it is saying. Okay. That's the only thing that it is saying. So when you are writing, just first write this statement and then you can go on to explain. The notation I know is slightly tougher, that's why I too prefer Cohen over this. I don't know why they have included this book, but करा है तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। CFLs एंड रेगुलर लैंग्वेजेस के बीच में रिलेशनशिप ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर L एक CFL है, L1 एक CFL है, L2 एक CFL है और R एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो कुछ रिलेशनशिप है। L minus R is a CFL. माइनस का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन डिफरेंट, मतलब जो वर्ड्स L R में है वो L में ना हो तो वो लैंग्वेज भी CFL है। वो कैसे? हमने बोला R इज रेगुलर, इसका मतलब R प्राइम इज ऑल्सो रेगुलर। L माइनस R का मतलब है व्हाट? L intersection R prime. Can we say that this something that is not in R but in L? L minus R is equal to this. अगर मैं
वेन डायग्राम बनाओ तो शायद आपको समझ आए। हाँ वो तो CFL ही होगा ना। Right. So something that is not in R but in L is L minus R. So only this portion. तो आपको वो चीजें जो L इंटरसेक्शन नहीं सर ये वाला सॉरी L minus R is something that is what is L minus R? ये L इंटरसेक्शन आ जो रहा है आपने मार्क किया था वही तो था। ठीक था हाँ even I got confused sorry sir and so this is equivalent to L intersection R prime whatever is not in R but in L that is this तो अगर मैं ये बोलूं कि R रेगुलर है तो R प्राइम भी रेगुलर है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट तो L is a CFL R is regular एंड हमने L माइनस आर की बात करी L माइनस आर को हमने L इंटरसेक्शन R प्राइम बता दिया बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर रेगुलर तो दैट मीन्स L अगर CFL है तो इसका मतलब L माइनस अगर ये रेगुलर है और L CFL है तो अभी अभी हम ऊपर प्रूव करके आए हैं दैट L intersection a regular language is also a is a CFL so we are saying that L minus R equals to some language which is a CFL and this CFL is what L intersection R prime intersection of CFL and regular language इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे तो रेगुलर लैंग्वेज ही पढ़ी है तो इसका मतलब ये भी CFL ही हो तो ये बोल रहे हैं कि L minus R is a CFL समझ आया या दोबारा बोलूं आ गया। Simple L minus R can be equated to L intersection R prime. This is a regular language. This is a CFL. We have just now proven that this set, this particular intersection of a CFL and a regular language is also a CFL. So L minus R is also a CFL. So L prime may or may not be CFL. It is not closed under complementation. सी अगर L CFL है तो L प्राइम जरूरी नहीं है कि CFL हो L प्राइम क्या है डी मॉर्गन लॉ से अगर आप लिखो अगर डी मॉर्गन लॉ लिखो L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स और हमें ये पता है कि CFLs आर क्लोज्ड अंडर यूनियन मतलब ओनली द इनसाइड ऑफ दिस पोर्शन इज अ CFL अब अगर ये क्लोज अंडर यूनियन था सिर्फ अगर ये L1 प्राइम मान लो CFL होती और L2 प्राइम अगर हमारी CFL होती हमें ये पता है कि L1 इंटरसेक्शन L1 अगर हमने बोला कि यूनियन के अंडर हमारा ये दिस इज क्लोज अंडर यूनियन सो वी आर एज्यूमिंग दैट L प्राइम इज ऑल्सो क्लोज्ड मतलब L1 प्राइम L प्राइम इज ऑल्सो अ CFL तो इस रिजल्ट की वजह से आपका L1 इंटरसेक्शन L2 भी CFL हो जाता अगर ये CFL हो जाता तो हम ये ऑलरेडी प्रूव करके आए हैं कि ये मे और मे नॉट भी CFL है दिस मे और मे नॉट ऑलवेज भी कंटेक्स्ट फ्री A and B and C and में हम देख के आए तो अगर ये कंटेक्स्ट फ्री नहीं है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंडर भी जरूरी नहीं है कि कंटेक्स्ट फ्री हो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट because union is always context free we know that we also know that this may or may not be context free that's why we can say that complementation may or may not be context free okay समझ आया दोबारा बताऊं आ गया। then you are saying L1 minus L2 may not be a CFL अगर L1 एक CFL है और L2 भी एक CFL है तो जरूरी नहीं है कि दोनों का इंटरसेक्शन दोनों का डिफरेंस सेट डिफरेंस भी CFL हो मान लो कि एक लैंग्वेज है वो CFL है तो सिग्मा स्टार उसके अल्फाबेट पे मतलब पावर सेट वो रेगुलर होता है तो CFL भी होता है तो अब हम ये बोल रहे हैं कि सिग्मा स्टार इज कंटेक्स्ट फ्री फॉर एनी अल्फाबेट तो L1 माइनस L2 क्या है
अगर मैं बोल लूं कि मेरी L1 जो है सिग्मा स्टार है और मेरी L2 लैंग्वेज इटसेल्फ है, मतलब इस लैंग्वेज का अल्फाबेट है सिग्मा स्टार और मेरी लैंग्वेज इटसेल्फ है, ये वाली लैंग्वेज CFL है और बाकी all the words in this language are also CFL। तो क्या जरूरी है कि इन दोनों के बीच में जो वर्ड्स होंगे सिग्मा स्टार माइनस एल, दो CFL का डिफरेंस अभी हम प्रूव करके आए हैं that it may not be context free। sigma star minus L is sigma star minus L, मतलब एक लैंग्वेज and all the words in the alphabet of that language। तो इसमें से L माइनस कर दो तो ये क्या बनता है L प्राइम, बट हम अभी प्रूव करके आए हैं कि L प्राइम इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। सो इसका मतलब कि L1 माइनस L2 में और मे नॉट बी कंटेक्स्ट फ्री। यस और नो। नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। मैं अगला नहीं चलाऊंगी, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म फ्राइडे को खत्म कराऊंगी, उसमें भी पुश डाउन ऑटोमेटा। ये नहीं समझ आया तो मैं बता सकती हूँ, इसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगी। इफ यू हैव डाउट देन आई कैन जस्ट क्लियर दिस अप एंड देन लीव। So it is, I am repeating again if you are still not asking, अगर L एक CFL है, जिस सिग्मा पे डिफाइन करिए उसका क्लोजर ले लो, वो डेफिनेटली कंटेक्स्ट फ्री है, क्योंकि वो रेगुलर है तो वो कंटेक्स्ट फ्री भी है। तो एज्यूमिंग L1 माइनस L2 इज अ CFL, अगर मान के चलें कि जो डिफरेंस है दो लैंग्वेजेस का वो CFL है, इसका मतलब ये है कि ये अगर CFL थी और ये भी CFL थी, तो because of this assumption this will also be CFL। बट हमें ये पता है कि किसी लैंग्वेज के अल्फाबेट का क्लोजर और उस लैंग्वेज में से बाकी उस लैंग्वेज के वर्ड्स माइनस कर दो तो हमारे पास उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बचता है। बट हमने ये बोला कि ये वाली चीज तो हम अभी प्रूव करके आए हैं कि CFL नहीं है। अगर ये CFL नहीं है, ये CFL है, तो इसका मतलब सिग्मा स्टार माइनस L पूरा, और ये भी CFL है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा CFL नहीं होगा। दैट्स वाई L1 माइनस L2 दो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का सेट डिफरेंस जरूरी नहीं है कि CFL ही बचे। ओके, आई एम डन। ओनली वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, जो अभी होमोमॉर्फिज्म किया था उसका इनवर्स बचा है, उसमें भी ये सारी कहानी है PDA वाली, बट कंफ्यूज हो जाओगे तो अभी छोड़ रही हूँ। जाना है तो जाओ, कोई डाउट है तो रुक जाओ। भूमि सबसे पहले, प्लीज लीव, यू कैन लीव।